my Let's Talk show, which is live show, and I am conducting this live show every night 9 p.m. Today I am gonna to discuss about talk of the town, property tax, and after abrogation of 370 and 35A, we are here to experience new laws which are implemented either in Delhi or in metros. Those laws are applicable now here in our UT of J&K. As far as property tax is concerned, proposed property tax is concerned, it's just a circular has been issued that property tax would be levied on the property owners in J&K in future. As far as property tax is concerned, the property tax would be levied on those who have more than one canal land, the house consisting of one canal land, and it's obvious that it's the tax levied on elite class, not on middle class people. We shouldn't make hue and cry that property tax has been imposed on us, because we don't need to worry. Most of the people who fall under this category is elite class, who have villas, who and the villas are constructed in one canal, more than one canal land. The tax would be collected from that class, not from middle class, not from lower class. So first of all, we shouldn't worry about it, because middle class is not gonna to be affected, and lower middle class and poor people are not gonna to be affected with this taxation process. One question arises: why government imposes tax on people? What is the purpose of tax? Tax is imposed on the people so that the revenue generation of government can be done, and the government can generate revenue and pay the salaries of their staff, and if we need development, and for that development we have to pay something. So that's why these taxes we must pay. We shouldn't oppose these taxes. If there's a toll tax, is for the purpose of maintenance. अगर आप मेंटेनेंस चाहते हैं, बेटर सर्विस चाहते हैं कि आपकी गाड़ी अच्छी से चले रोड पे, तो we have to pay the toll also, and we shouldn't oppose it.
हाँ, अगर टोल पे करने के बावजूद भी आपको वो सर्विस नहीं मिलती, रोड ख़राब मिलता है, तो दैट इज़ द फॉल्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर और नेशनल हाईवे अथॉरिटी हु जस्ट जो टैक्स रेवेन्यू आता है, जो टोल आता है, उसको यूटिलाइज प्रॉपरली नहीं करता। तो रही बात कि टैक्सेशन, हम टैक्स क्यों भरते हैं, और टैक्स अगर हम भरते भी हैं तो वो किस काम में आगे लगता है, हमारी डेवलपमेंट के कामों में लगता है। हमारी सड़कें उसी टैक्स से बनती है, हमारे रोज़मर्रा की जो सैनिटेशन है वो भी उसी टैक्स जब हम पे करते हैं तो उसी से होता है। तो वी शुडंट अपोज एवरीथिंग बिकॉज वी इन JKUT earlier it was a erstwhile J&K state, now we are in UT। ये मेट्रोज में बहुत पहले से चल रहा है। There is tax on everything, what electricity tax, electricity ये वाटर टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, तो वहाँ पे सब कुछ दिया जाता है। मेंटेनेंस टैक्स, अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं तो वो सोसाइटी का मेंटेनेंस का भी देना पड़ता है आपको मंथली। तो इट्स न्यू फॉर अस, दैट्स व्हाई वी आर क्राइंग दैट दिस थिंग हैज़ बीन इम्पोज्ड ऑन अस। तो क्योंकि हमें आदतें ये नहीं रही हैं कि हम टैक्स पे करें या बिजली के बिल पे करें। पीछे तो बहुत सारे, मुझे लगता है कि आधा J&K तो विदाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मान लो किसी के पास रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी नहीं था, तो ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट हम बिजली भी यूज़ कर रहे थे, पानी भी यूज़ कर रहे थे। तो इसकी एक कॉस्ट होती है, मिनिमम कॉस्ट होती है। आप किसी एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप कहीं पे टॉयलेट के लिए जाते हैं वहाँ पे भी आपको 5 रुपये देने पड़ते हैं, और दैट 5 रुपी यू पे फॉर मेंटेनेंस ऑफ दैट एंड द सैलरी द पर्सन एम्प्लॉयड देयर, उसके लिए। तो इसमें हमें ह्यू एंड क्राई नहीं मचाना चाहिए। वी शुड जस्ट मान लो सपोर्ट दीज थिंग्स इफ़ वी वांट डेवलपमेंट। अभी अब्रॉड में कैसे डेवलपमेंट हुआ है, वो इस ऐसे ही हुआ है। यही रीजंस रहे हैं जिनकी वजह से डेवलपमेंट हुआ है। प्राइवेटाइजेशन हुआ है, एवरीथिंग इज प्राइवेटाइज्ड, एंड हियर वी in J&K or in India we see government sector is more powerful than private sector, and in abroad it's a reverse. Private sector is more powerful than government agencies or government sector. So privatization of everything is must, because most of the government departments are running on loss basis, वो लॉस पे चल रहे हैं, तो हमें टैक्सेस पे करने चाहिए, एंड वी मस्ट गो फॉर टैक्सेस हैप्पीली। एंड वन मोर थिंग इज़ कि मुझे बड़ा दुख हुआ जो हमारे यहाँ पे, मैं ऐसी चीज़ें तो अब्रॉड में ही देखी हैं। हमारे यहाँ पे सिदरा रोड पे कुछ खुले थे ये रेस्टोरेंट्स के लाइन लगी हुई थी, मैट ग्लैड, आई लव जम्मू, ये वो बहुत अच्छा लगता था। जब ट्रैवल करते थे तो बड़ा अच्छा लगता था, और ऐसा फील होता था कि वी वर इन सम अब्रॉड लोकेशन। वो एक आइसोलेटेड एरिया था, उस आइसोलेटेड एरिया को 4 चांद इन लड़कों ने लगाए थे, जो कि लोन्स लेके उन्होंने ये चीज़ें बनी,
और उन्होंने इन्वेस्ट करा था इस पे, और वहाँ पे काम भी था, और मान लो बहुतों का रोज़गार उसके साथ जुड़ा हुआ था. गवर्नमेंट मस्ट थिंक अबाउट इट, एंड आई अर्ज गवर्नमेंट टू रीथिंक अबाउट इट, बिकॉज वहाँ पे सारा यूथ जो है वो एंटरप्रेन्योर्स. अभी मेरा लाइव सेशन रिसेंटली हुआ था एंटरप्रेन्योरशिप पे, तो वो सारे एंटरप्रेन्योर्स थे जिन्होंने आगे एम्प्लॉयज़ रखे थे. किसी के पास 40 एम्प्लॉयज़ थे, तो 40 घर इस वक्त बेरोज़गार हो गए, और वो साथ में वो वाला एंटरप्रेन्योर, उसकी किस्तें भी फंस जाएंगी. तो किसी के पास 30 एम्प्लॉयज़ थे, उनके 30 एम्प्लॉयज़ मीन्स 30 फैमिलीज़, 30 फैमिलीज़ का रोज़गार चल रहा था. इफ़ दे हैव एवरी डॉक्यूमेंट, वाई दे आर क्लोज्ड. कोई भी फरमान आता है, तुगलकी फरमान इसको कहते हैं, तो वो इम्प्लीमेंट किया जाता है. तो आई जस्ट अपील गवर्नमेंट टू एनकरेज द यूथ to open such business units, so that एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये तो गवर्नमेंट को भी सपोर्ट कर रहे थे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में इनके साथ जुड़े हुए जो एम्प्लॉयज़ थे, कुछ क्लर्क थे, कुछ वेटर्स थे, कुछ कोई और काम कर रहा था, तो ये एक किस्म की आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प कर रहे थे. तो इनको बंद करना, मेरे हिसाब से, इट्स माय पर्सनल व्यू, इसमें कोई सियासत नहीं है, कोई कुछ नहीं है. इट्स माय पर्सनल व्यू दैट इफ़ दे हैव स्टार्टेड समथिंग न्यू इन जम्मू, दे मस्ट हैव बीन एनकरेज्ड. ये हम पीछे क्यों जा रहे हैं? वाई वी आर मूविंग बैकवर्ड्स. हर कंट्री अब फॉरवर्ड मूव कर रही है, आगे एडवांस हो रही है, एंड वी आर मूविंग बैकवर्ड्स. हमें यहाँ पे यही है कि उसने ज़्यादा कमा लिया, उसने कैसे कमा लिया, और उसने क्यों कमा लिया. ये 3 सवाल हमारे दिमाग में हमेशा आते हैं. अगर वो बेचारे लड़के इसलिए कि उनके बिजनेस हाउसेस को ठप कर दिया गया है, और मे भी कोई लीगल फॉर्मेलिटी रहती हो या कोई कुछ. अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, ही वॉज क्राइंग, द गाय वॉज क्राइंग दैट ही हैज़ एवरी डॉक्यूमेंट. उसके पास रजिस्ट्री है, उसके पास डॉक्यूमेंट है, उसके पास पार्किंग है. He has everything, and despite having every document, his restaurant is being sealed or closed. तो ये गलत बात है. अगर हमारे यूथ कुछ करना चाहते हैं तो उनको वो करने भी नहीं दिया जाता है. 4 पैसे अर्न कर रहे थे तो 4 पैसे अर्न करने नहीं दे रहे हैं. और ये सिर्फ उन मालिकों का नुकसान नहीं है, ये बहुतों का नुकसान है जो उन एंड ये उनका नुकसान है कि ये बहुत सारी फैमिलीज़ को इस वक्त लॉस हुआ है, और जॉब लॉस हुआ है, और उनके घर कैसे चलेंगे, गॉड नोस. तो गवर्नमेंट, डिस्पाइट गिविंग जॉब्स, दे आर जस्ट टेकिंग वट एवर वी हैव. तो आई रिक्वेस्ट government to just provide them कुछ अच्छा उनके लिए करें, ताकि वो अपना भी रोज़गार चलाएं, और जो उनके साथ एसोसिएटेड हैं एम्प्लॉयज़, उनको भी रोज़गार का घर चलाने का मौका दें, ताकि वो भी अपना घर चलाएं. कि वो अपने, अब जैसे किसी की जॉब लगी हुई है, कहीं रेस्टोरेंट में लगी हुई है, कहीं लगी हुई है, तो वो कहीं भूखे ना मरे. तो वो मेरा यही है कि फर्स्ट वाज वी शुड पे टैक्सेस, वी शुडंट अपोज द टैक्स,
because this tax we are not gonna to pay. This is the tax is for elite class, जो जिनके एक एक कनाल से ऊपर जो लैंड है उस पे मकान बना हुआ है, उनके लिए एक टैक्स है, तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। एंड सेकंड थिंग इज़ कि ये जो सिदरा में जितने भी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स, वहाँ पे तो जाते जाते मुझे अब्रॉड की याद आती है। जैसे यूरोप में तो ऐसे रेस्टोरेंट्स की चेन है, वहाँ पे आप कहीं गली में अगर जाते हैं तो बीच के साथ में ऐसे ही रेस्टोरेंट्स हैं और वहाँ पे बड़ा क्राउड होता है लोगों का। तो उस टाइप का एक कल्चर यहाँ पे भी बन गया था कि रेस्टोरेंट्स थे और जगह भी अच्छी जगह थी कि जहाँ पे एक टाइम वो जगह ऐसी थी कि वीरान थी कि कोई देख चलने को राज़ी नहीं था। तो आज की डेट में अगर वहाँ पे ऐसा हुआ है, बड़ा अच्छा रश है, अच्छी तरह से है, तो ये उन लड़कों की मेहनत है और गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको कोई रिलीफ दें ताकि वो अपना काम अपने हिसाब से करें। आज के लिए इतना ही। लेट्स टॉक शो देखते रहें। आने वाले टाइम में किसी और हस्ती के साथ मुलाकात करेंगे। आज तो मैं बस खुद ही इसके बारे में थोड़ा सा टैक्सेशन के बारे में बताया, टैक्सेशन क्या है और हमारी आदतें क्या है। और दूसरा, जो सिदरा रोड पे जो रेस्टोरेंट्स की एक चेन बनी हुई थी, उस पे थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा फील हुआ क्योंकि बहुतों का रोज़गार चला गया और मैं तो चाहता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जाए। तो अगर ऐसा हो रहा है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? फिर तो ये गलत पॉलिसी है। तो वंस अगेन गुड नाइट, शब खैर, टेक केयर।